ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 First canto, chapter number first canto, chapter 2, sloka number 12. Tat Shraddhadhana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Sruta Hritaya Tat Shraddhadhana Munayo ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चत्मानं भक्त्या श्रुतो हृतया तच्छ्रद्धाधन मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतो हृतया तच्छ्रद्धाधन मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतो हृतया तच्छ्रद्धाधन मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुता हृतया तच्छ्रद्धाधन मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानं
Bhaktyashrita English translation. The seriously inquisitive students or sage, well equipped with the knowledge and detachment, realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. आपने भगवद गीता में देखा, we all must have heard the very famous shloka from Bhagavad Gita, Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya. The purpose of this particular shloka is very beautifully explained in the Srila Prabhupada book. We'll read it paragraph by paragraph so that we can discuss on that. The absolute truth is realized in full by the process of devotional service to the Lord, Vasudeva or personality of Godhead, who is full-fledged absolute truth. Brahman is his transcendental bodily appearance and Paramatma is his partial representation. As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization. There are four different types of human beings: the karmis, jnanis, yogis, and the devotees. The karmis are the materialistic, whereas the other three are the transcendental. The first class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. The second class transcendentalists are those who have partially realized the preliminary portion of the absolute truth. And the third class transcendentalists are those who are barely realized the spiritual focus of the absolute truth. As stated in Bhagavad Gita and other Vedic literature, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by, ये line को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed the point of devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. Now, यहाँ पर रुककर let us discuss. You want to go to Prabhuji's house. Best friend, very good friend. Right? You know the address. You go to Prabhuji's house, you kiss the door, hug the door, and then stand over to the door, and then come without meeting Prabhuji. Exchange was there. No? You went to Prabhuji's house, you took effort, you took knock his door, hug the door, had nice exchanges with the door, and then you came back. How will he feel and how will you feel? मजा नहीं आए. You'll not enjoy. That will not be there. Why? Because मजा आता है personal interaction. Through personal interaction. We, for happiness, need personal interaction. For our mental and physical satisfaction also, we need personal interaction. Right? Now, why personal interaction? Personal interaction is so difficult sometimes. Personal interaction because that is genetics. We are all part and parcel of Krishna. And Krishna is very personal. That is why we also need personal interaction. Only then we can get fully satisfied. In that personal interaction genetics, if we put something which is very impersonal, Krishna is all around in the trees, all around in the air, everywhere, we are not going to get satisfied. Oh, Krishna is seated in everybody's heart, every animal is Krishna, every insect has Krishna. Well and good, but that genetics will remain unsatisfied. That eagerness to get happy by personal interaction will never get satisfied. And when that doesn't get satisfied, that hunger will remain. And when that hunger remains, we will search it in some other place. Personal attachment, personal relationship, familial activity, love, so-called love, right? Attraction, which basically is in a different group, lust only. All these modes we will try and search
that hunger for personal attachment, right? Which can only be fully satisfied when we are attaching ourselves to the Supreme Personality. There is no other personal attachment satisfaction. The hunger for personal attachment will never get satisfied without attaching ourselves to Krishna. Now, the problem is here we have just learned that there are four kinds of men: the karmis, the gyanis, the yogis, and the devotees. The karmis, the gyanis, the yogis, and the devotees. Out of this, Srila Prabhupada writes in the purport, karmis are the materialistic, right? Gyanis, yogis, and devotees are the transcendental. Right? What is the difference? सबसे पहले होता है कर्मी. What is the definition of the कर्मी? He doesn't bother about transcendental. अपना काम होता है, अच्छी बात, ठीक है. तो बॉलीवुड का लाइन है ना, अपना काम बनता फाड़ में गई थी. ये है कर्म. उसको अपनी पड़ी है, इससे क्या करना है, क्या करना है, जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप बना. ये उनका फिलोसफी. दिस इज कर्म. He doesn't bother about what is the purpose of life, why you have taken a human birth. No question. He is only bothered about his own comfort, ease. Right? For his comfort, he can do anything. That is the karma. Right? Whereas the jnanis, yogis, and the devotees, as the Prabhupada mentioned, there are first class transcendentalists, second class transcendentalists, third class transcendentalists. Right? First class transcendentalist, who is that? First class transcendentalist is a devotee who is serving, who is directly serving the Lord, who is serving the devotees. He is a first class transcendentalist. Second class transcendentalist is who is partially realizing this. Partially realizing means what? He is understanding that Krishna is present in every soul, every body. Right? Krishna is there in you, Krishna is there in him. But he has not got that personal interaction, that affection he has not got. So that is called as a second class devotee, partial interaction. And the third class devotee, the Prabhupada mentions, has barely realized the spiritual focus. And Srila Prabhupada in the next part of the purport goes on to describe what is this third class devotee and what is the difference between the third class devotee and the karmi. This is very, very important. So let us read that line again. And the third class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus. As stated in Bhagavad Gita and other literatures, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed that the point of devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. Now, everybody on the impersonal platform tells, first you must acquire Gyan. पहले ज्ञान होना चाहिए. भगवान कौन है, ये पहले ज्ञान. भागवतम में भी तो ऐसा ही सीक्वेंस है. We have seen in the Bhagavatam also, first 9 cantos are not talking about the personal interactions of Lord Krishna. They are talking about who the personality is. That means what? That is one of the most important things. Then we might be thinking, then why are we not taking jnana first and then getting into devotional service? उसका explanation is, Srila Prabhupada in one of his lectures makes us understand like this, that if you have 1 lakh rupees, this is exactly what his line is. If you have 1 lakh rupees, that means you have 100 rupees also. That means you have 10 rupees also. Anything that is below that 100 and 1 lakh rupees is all in your personal point. This one. Now with the Gyan, with the Vairagya, what are you going to do? This is very important. You attend Gyan and Vairagya. What is after that? Gyan and Vairagya now must just sit there. फ्री में कहीं भंडारा लगेगा, खा लेंगे. नहीं होता है ना. हिमालय के तटों में आप देखिएगा, बहुत सारे बाबा जी रहेंगे, बहुत सारे ये रहेंगे, तो भंडारे में आते हैं. They come to the भंडारा, eat prasadam, and after that they will vanish. Right? So now what is the benefit of this? Is this a transcendental activity?
Is this a transcendental activity? It is not a transcendental activity. So what is the basic transcendental activity? How is it transcendental activity? Transcendental activity will be there when this particular activity has turned or reflected into seva. इसका next step. What is the next step? नर ही नारायण. तो हम नर सेवा में लग जाएंगे. नर सेवा में लग जाएंगे माने जनता का सेवा, गरीबों का सेवा. This will be the next step of understanding. Okay, good. At least some seva he has turned in. Right? Then the next stage of understanding. Next stage of understanding is that, oh, Nar seva is Narayan seva, but am I directing these souls towards Narayan, towards Krishna? That is the next level of. So when a person is getting into a devotional service, he is getting in wholesome all of these things. How? When he is becoming a devotee, when he is serving Lord Krishna or Lord Jagannath, is he not taking care of the other devotees as well? Is he not taking care of preaching as well? जो preaching करना चाहेगा, he has to study, no? Without ज्ञान, how will he preach? Right? Similarly, vairagya, whenever he is doing a DT seva also, whenever he is doing preaching also, he has to sacrifice a lot of his time, right? Lot of his physical energy. When he is sacrificing all these things, that is vairagya. So now you compare that sadhu from the Himalaya foothills and consider a devotee. A devotee is doing devotional service in the beginning and attaining along with that jnana and vairagya. And this person is starting from the bottom, first trying to earn jnana, then vairagya, and not growing into the devotional service. What is the use of that personality's entire knowledge and vairagya? You're able to understand this? Right? So that is why very important thing is to understand we have already discussed the point of devotional service is followed by knowledge and detachment of material association. This line is what I am trying to explain it to you. We have already discussed that the point of devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. Right? When you are getting into devotional service, जब सेवा करेंगे तो सेवा करते करते साथ में डिटैचमेंट, वैराग्य और ज्ञान अपने आप आ जाएगा. कि बिना उसके आप भक्त नहीं बन सकते. As Brahman and Paramatma realization is imperfect realization of the absolute truth, so the means of realizing the Brahman and Paramatma, the paths of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing absolute truth. As Brahman and Paramatma realization are imperfect realization of absolute truth, so the means of realizing the Brahman and Paramatma, that is the path of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the absolute truth. The devotional service is based on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association and is fixed by, line are you reading this line? Fixed by oral reception of Vedanta Shruti. Oral reception of Vedanta Shruti is the only perfect method by which seriously inquisitive students can realize the absolute truth. So devotional service is wholesome, no doubt. Devotional service is complete. If that comes, Jnana and Vairagya. But there is a proper method of it. Right? आप क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेट का ट्रेनिंग लेंगे. अब क्रिकेट का ट्रेनिंग लेके हम बोलेंगे बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग लिया, सचिन तेंदुलकर के एकेडमी में जाके ट्रेनिंग लिया और फिर खेल रहे गली क्रिकेट. क्यों? हमको वही मजा आता है, गली क्रिकेट ही मजा आता है. समझ में आ रहा है सिचुएशन? You have gone into top cricket academy, and then what you are doing after that? I want to play gully. I want to go into the small gullies and then I am playing. It is misuse of your time and misuse of your education. Have you understood? Is it clear? So that is what they are telling. What Srila Prabhupada is mentioning here. The devotional service is based on the foreground of full knowledge, combined with detachment, but is fixed on oral reception. Technique and procedure follow karna padega. Only then you will get the benefit out of it. What is the technique? What we are doing right now. Oral reception. We have to use our ear to connect to Bhagavatam. If we do not connect to Bhagavatam by listening
then it will become a problem. Right? समझ में आया? Is it clear? Now, this is the only perfect method by which serious inquisitive students can realize the absolute. Devotional service is not, therefore, meant for less intelligent class of transcendentalists. Devotional service is therefore not meant for less intelligent transcendentalists. The less intelligent transcendentalist point has been mentioned in Bhagavad Gita also. स्त्रियों वैश्य शूद्र सबके लिए बता रहा हूँ. Right? Now, how is it connected? He is saying here, Srila Prabhupada is mentioning that this knowledge is topmost, devotional service is topmost. Right? It is not easy for less level of transcendental people to understand this. But then, why are we learning? Are we in that top transcendental quality? No. It is only mercy of Srila Prabhupada and the senior devotees that we are getting this chance. ये हमको अपने जो वरिष्ठ भक्त हैं, चलो प्रभुपाद हैं, उनकी कृपा से मिल रहा है. ठीक? तो सेवा करते समय सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? हम इसके अधिकारी नहीं हैं. और ये अधिकार हमें किसने दिया? ये अधिकार हमें श्रील प्रभुपाद और भक्तों ने दिया. बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि इवन भक्त बनते हुए भी, सेवा करते हुए भी, कहीं ना कहीं हमारा मेन प्रिंसिपल क्या था? हमने पहले क्या डिस्कस किया? व्हाट वी डिस्कस इन द बिगिनिंग, हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल ऑफ अस आर जेनेटिकली ट्राइंग टू बी हैप्पी. मजा चाहिए, सबको मजा चाहिए. अब भक्त बनने के बाद भी कहीं ना कहीं वो मजा ढूंढने वाली प्रक्रिया हृदय में एक बीज की तरह रहती ही है. मजा, मैं आराम, मजा. Mercy of devotional service is that the process has lot of meaning. Okay? So that is why that eagerness to satisfy, to enjoy, the procedure itself is satisfying. Whereas in all the other procedures, they are authentic procedures. Gyan is also authentic procedure. Yoga is also authentic procedure. But it is like this, that you go to Delhi, then only you will get money. लेकिन दिल्ली तक चल के जाना, या हिमालय जाओ तो मजा है, लेकिन हिमालय तक चल के, अब बेचारा चलते चलते खत्म हो जाएगा बीच में. इसीलिए डिवोशनल सर्विस का क्या मजा है? डिवोशनल सर्विस क्या बता रहा है? चल के नहीं जाना है भाई, मजे करते करते कीर्तन करते करते जाना है. और ट्रेन में बैठकर टिकट मिलेगा, और टिकट के साथ साथ प्रसाद भी मिलेगा, प्रसाद के साथ साथ दोस्त भी मिलेगा, दोस्त के साथ साथ मदद भी मिलेगा. अब आप सोचिए हाउ ब्यूटीफुल द जर्नी विल बी. गोल इज देयर, गोल इज सेम, that goal is same, but to reach that goal there are three parts. All the three parts, the topmost part is the devotional service. Devotional service, why is it considered the topmost part? Because the process is fantastic. The search for happiness is satisfied by the process itself. It is not by satisfied by the goal, it is satisfied by the process itself. करो तो मजा है, जो मजा आएगा वो टिकेगा. जहाँ मजा नहीं आ रहा है, टिक नहीं है. अब यहाँ पे नहीं टिकने का कारण भी बताया जा रहा है. Who does not stick to devotional service? कौन नहीं टिकेंगे? डिवोशनल सर्विस में सस्टेन करने में मुश्किल कब होता है? इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ. डिवोशनल सर्विस में स्टिक करने में मुश्किल तब होता है जब वो पर्सनल अटैचमेंट नहीं हो रहा है. आप देखिए इस चीज को कैसे समझिए. आपको अगर किसी भक्त के साथ भी पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है ना, सीनियर डिवोटी के साथ पर्सनल अटैचमेंट हो जाए ना, आप भक्ति कभी नहीं. दो तरह से. कैसे छोड़ोगे तो वो पकड़ेगा, पहली बात. दूसरी बात ये कि किस तरह का अटैचमेंट जो आप अपनी समस्या में उसके पास नहीं गए. बच्चा तो वो होता है ना जो समस्या में रोते बाप के पास जाए. आप कैसा अटैचमेंट कर रहे हैं जो आप अपने बाप के पास कभी गए ही नहीं. तो बाप कौन? जैसे बोला सर बाप क्यों बोल रहे हो, रोज बाप क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल. हमारा सीनियर वरिष्ठ भक्त हमारा सेवा में
हमको तकलीफ हुआ, हम उस तक नहीं गए, तो फिर कैसा रिलेशनशिप है? और जब ये रिलेशनशिप नहीं बना ना, जब ये बॉन्डिंग नहीं बना, when this bonding is not there, then we search it. At that time we search it. Someone, maybe another friend, family friend, because as soon as we think that we only give philosophy, you go to a karmi friend, he will give fantastic philosophy, जबरदस्त. और वो फिलोसफी कहाँ से आएगा? वो फिलोसफी हॉलीवुड बॉलीवुड से आएगा. That is what you will get attracted when you are down with devotion, when that personal attachment is lacking, right? At that time, you go around the marketplace, one or two person will दुकानदार भी देख, अरे प्रभु जी तिलक लगा के ऐसे करके फिर रहे हो, देखो आराम से जिंदगी जियो, क्यों ऐसा परेशान हो रहे हो? तीर लगाया, सच में आज तो लड़ाई हुई घर में, मंदिर में लड़ाई हुई. ठीक, इमीडिएट उसका फिलोसफी एकदम अमृत जैसा. उसके बाद क्या होगा? उसके साथ धीरे धीरे अटैचमेंट, जिसके साथ अटैचमेंट बढ़ेगा उस तरफ में आपका फ्लो बढ़ेगा. सो व्हाट इज द रेमेडी ऑफ इट? रेमेडी ऑफ इट इज get back to your first personal attachment, the stronger personal attachment. It is impossible for a third class devotee, the lowest class devotee, to grow as long as you do not have attachment to one level higher person. Right? This is Chanakya Niti. If you want to grow higher, catch hold of somebody's hand who is already higher. कोई खींच ले. Right? If you hold somebody who is lower by this your level, he will pull you down. Right? Have you ever seen or tried to protect any drowning man? One who is drowning in water, have you tried to protect that person? Have you tried to save that person? It is very difficult. And only an expert, intelligent man can save this drowning man. अब ये ट्रिक समझी, ड्राउनिंग आदमी का बचाने का ट्रिक समझी, डूबते हुए आदमी को कैसे बचाए. If you go in front of him, right? If you go in front of the drowning man will grab you out of fear. Bachao, 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 bachao. Right? And in that you can't even swim. आप ही नहीं swim करेंगे, आप sink कर जाएंगे. That is why many expert swimmers die saving other people. And this rule is applicable in devotional service also. Right? We are going to save other people, but we don't know the technique. What is the technique? Now understand the technique of saving a drowning person. Go behind him. सामने मत जाओ और उसको जोर से किक मारो या उसको धक्का मारो ताकि वो स्टेबल पत्थर की तरफ चला जाए. क्यों? क्योंकि सामने जाओगे तो पकड़ लेगा. धक्का मारोगे स्टेबल तरफ में तो कम से कम एक पत्थर को जाके पकड़ेगा, जकड़ के बैठेगा. नहीं, फिलोसफी क्या सीखने को मिला? आप नहीं बचाओ, आप उसे धक्का मारो स्टेबिलिटी की तरफ. नहीं, और धक्का मारने के तरीके, सबसे बड़ा धक्का प्रसाद, नंबर 2 धक्का कीर्तन, नहीं, तीसरा धक्का आपका संग, दोस्ती, नहीं, चौथा धक्का फिलोसफी. जब इसमें वो मजा करने लगे, तो मजा आ रहा है, कितने मस्त हैं आप लोग, जब ये परिस्थिति आ जाए तब समझिए उसको थोड़ा सा फिलोसफी. ये है धक्के का. Is it clear? This is what is preaching. The other day I was telling, preaching means reaching the heart. If you can't reach the heart, what kind of preaching is it? Right? And for reaching the heart, you must have personal. दोस्ती बनना है पहले. Right? अब दोस्ती बन के उसका गुण लेना है कि आप उनको अपना गुण देंगे, ये आपकी परिपक्वता पे निर्भर करता है. नहीं, आप एक दारू पीने वाले को भी प्रचार कर सकते हो. ऐसे मजाक में श्रील प्रभुपाद के जीवनी से एक एपिसोड आता है. एपिसोड कैसा है कि श्रील प्रभुपाद के इनिशियल अमेरिकन भक्त पूछते हैं, व्हाट इज दैट सिटी कॉल्ड? लास वेगस में
प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद shall we go to the casino and the bar to preach? तो श्रील प्रभुपाद बोलता है, why not? वो लोग बोलते, that is fantastic place to preach, Prabhupada. So many fallen souls are there. If we go inside and preach and distribute books, it will be very nice. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हंसकर कि it is very nice idea, but make sure you come back. बहुत मजेदार चीज है, जबरदस्त आइडिया है, लेकिन वापस आना, क्योंकि वापस नहीं है तो वो इस एनवायरनमेंट में जाकर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो मानसिकता उनका लेने लग जाते हैं. सो दैट इज व्हाई व्हाट इज द प्रोसीजर. अब हम थोड़ा फिटनेस का बात, एक्सरसाइज से हम लोग दूर नहीं रह सकते. आप सोचो, दूसरे को एक्सरसाइज सिखाना है, आप खुद एक्सरसाइज नहीं करो तो कैसे चलेगा. आपको सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं करना है ना, तभी जाके आप दूसरे को सिखाओगे. ठीक उसी तरह से आप दूसरे को उठाने जा रहे हो और खुद अपने उठने का प्रक्रिया नहीं किया, तो फिर आप किस तरह से दूसरे को उठाओगे. चोट लग जाएगा ना, आपको घायल हो जाओगे. इसी को साधना कहते हैं, इसी को डिवोशनल सर्विस कहते हैं. इसी वजह से हमको दूसरे का मदद करने जरूर जाना है, लेकिन अपने आप को सुदृढ़ बनाकर जाना है. नाउ विल रीड फर्दर. एंड व्हाट इज द मेथड. सुदृढ़ बनाने का मेथड श्रील प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम दिया है. मॉर्निंग प्रोग्राम और उसके साथ साथ श्रुति. एग्जैक्ट वर्ड लिखा है, देखो, ओनली विच इज फिक्स्ड बाय ओरल रिसेप्शन ऑफ द वेदांत श्रुति is the only perfect method for serious inquisitive student can realize the absolute. ये सबसे बेस्ट है. This is the best. But how to achieve this? By listening. Have you understood? Now here, the last line they are mentioning in the same page, there are three classes of devotees, namely the first, second, and third class. The third class devotee or the neophyte who have no knowledge are detached from material, are not detached from the material association, but who are simply attracted by the preliminary process of worshipping the deity in the temple are called material devotees. Material devotees are more attached to the material benefits than transcendental profit. There one has to make a definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional service. In the second class position, the devotee can see four principles in devotional life, namely the personality of Godhead, his devotee, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to a stage of second class devotee and thus become eligible for absolute truth. Right? अब इसको तीन क्लास ऑफ डिवोटी में अंतर कहा गया है. थ्री क्लासेस ऑफ डिवोटी, थर्ड क्लास, second class, first class. Now, Srila Prabhupada in this paragraph talks about the third class. Very finely, we have to understand the difference between a karmi and a third class devotee. He uses the word who have no knowledge, are not detached to material situation, but who are simply attracted by the preliminary process of worshiping the deity in the temple. वो मंदिर में आते हैं, भगवान के विग्रह की तरफ देखते हैं, सच्चा देखते हैं, कीर्तन सुनते हैं, और मजा आता. और ये कौन होते हैं मालूम है? तो ये सेल्फी वाले डिवोटी. ये सेल्फी वाले डिवोटी. सेल्फी वाले डिवोटी मतलब क्या? आप देखो, कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स में भी आते हैं, कई बार आके सबसे पहले भगवान के साथ में सेल्फी खींचना शुरू करते हैं. ये सेल्फी डिवोटी होते हैं, एकदम माने नीचे के स्तर में डिवोशनल है. बुरा नहीं है, गंदे नहीं, लेकिन अभी उनका परिपक्वता अच्छा नहीं हुआ. कर्मी वाला तो कभी मंदिर आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो धंधे से आ रहा है. धंधे से आ रहा है. आज देखो हमारा धंधा शुरू होने वाला है, 2 नारियल चढ़ा के जाऊंगा, बिजनेस थोड़ा अच्छा पक्का. अब बिजनेस आने के बाद, शुरू हो जाने के बाद दर्शन ही नहीं, फिर आप पूछने जाओ, फिर आप कुछ राजभोग भी देने जाओ, टाइम नहीं मिलता. ये आंसर सुना है कि नहीं? कई जगह पे सुना होगा ना, तुम्हारे मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हमको टाइम ही नहीं मिलता. ये टाइम नहीं मिलना है वाला ग्रुप है ना, ये कार्मिक ग्रुप. तो आपको क्या अप्रोच करना चाहिए?
आपको उससे घृणा नहीं करनी, आपको उससे घृणा नहीं करनी है। धर्मी आदमी आ गया हमारे जीवन में, हमारे जीवन में भक्ति भक्ति नहीं। कर्मी आदमी के साथ आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? दया, कंपैशन, कृपा, इससे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी कृष्ण का बच्चा है, लेकिन भटक गया है, नहीं? और भटके हुए आदमी का थोड़ा मदद आपको भगवान ने बंद करने की कृपा दी। कैसे दी है? कभी किसी को किताब दे दिया, कभी किसी को प्रसाद दे दिया, कभी किसी का सामने कृष्ण का गुणगान कर दिए। कुछ नहीं हुआ, भिखारी से मिल रहा है तो भिखारी को हरि नाम करो, लो प्रसाद, लो हरि नाम करो, जोर से हरि बोल। कल मैं एक भक्त के यहाँ घर गया था, तो आप भी जानते हो बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, अभी वो उड़पी रहते हैं। तो उनके भक्त में भक्त के घर के दरवाजे को मैं बंद किया, तो देखा बिल्डिंग में क्लीनर है, क्लीनिंग करते हैं ना बिल्डिंग में, वो सीढ़ी का वगैरह साफ कर रहे हैं। तो सीढ़ी वगैरह साफ करते हुए मेरे तरफ देख के बोलता है, हरे कृष्णा। सीढ़ी साफ कर रहा है, तो भक्त के पिता पीछे से निकले। तो पिता निकलते हुए मेरे को बोले, जब भी मेरा बेटा आता है तो नियम बना दिया है कि इस बिल्डिंग में जितने भी लोग उनको मिलेंगे सब हरे कृष्णा बोलेंगे। तो अभी ये परिस्थिति हो गया, हमारे घर का दरवाजा कोई भी बंद करता है खोलता है, सबसे पहले ये लोग उनको हरे कृष्णा बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर वातावरण, कितना सुंदर एटीट्यूड है कि हाँ, कम से कम उनके संग पाते हो हरे कृष्णा तो बोलने। नहीं तो वो बेचारा समझ लीजिए काम का सेवा कर रहा है, आपको सिक्योरिटी गार्ड का सेवा कर रहा है या क्लीनिंग का सेवा कर रहा है, उसको कहाँ मौका मिलेगा हरे हरि नाम करने का? इस भक्त के एसोसिएशन में हरि नाम तो कर रहे हैं, ये है कृपा। लेकिन घृणा नहीं कर, घृणा करने से वो भक्त कभी आएगा ही नहीं, वो कर्मी कभी कभी आएगा नहीं। तो इसीलिए अपने आप को बड़ा मानकर सामने वाले इंसान को घृणित रूप से देखना ये भक्ति की निशानी नहीं है, वो थर्ड क्लास डिवोटी ही है। और हम लोग कहीं ना कहीं डिवोटी होते हुए थर्ड क्लास लेवल पे ही हैं। ज्यादातर समय पे हम लोग थर्ड क्लास लेवल पे ही हैं। कहने से सबको बुरा लगा, वो अपने आप को थर्ड क्लास बोला। क्यों बुरा क्यों लग रहा है? क्यों कहीं ना कहीं मजा लेने के चक्कर में हमने अपने आप को फर्स्ट क्लास डिवोटी माना है। हम लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, सेवा करते हैं। 2 दिन पहले एक भक्त माता जी से ही डिस्कस, हमारे स्टूडेंट है तो उससे डिस्कस कर रहे थे, वो ब्रेन के ऊपर डॉक्टर हैं, तो बता रहे हैं कि रोज ह्यूमन साइकेट्री में बहुत समस्याएं होती है। तो मैं उनसे पूछा सबसे बड़ी साइकेट्री का समस्या क्या होता है मालूम है बेटा? क्या होता है? साइकेट्री का सबसे बड़ा समस्या भक्तों में होता है कि लोग हमारी तारीफ करते हैं, हम उसे मान लेते हैं। प्रभु जी आपके जैसा कोई भक्त नहीं है, आपको कमाल हो, आपसे बढ़िया और कोई नहीं है। हम तो बस, बस प्रभु जी बस रहने दो। हम अंदर ही अंदर वो ले रहे हैं, अंदर ही अंदर। कितना मजा है। आपको कभी किसी ने बोला, हे बदमाश, हड्डी तोड़ दे, कैसा भक्त है तू? जैसे ऐसा बोल, हमारे भक्त आदमी भी ऐसा बोल रहा है, दोबारा आप उसका चेहरा नहीं देखोगे। अरे, क्यों भाई? आप ऐसे बाहर तो बोल रहे हो कि मैं तो एकदम कनिष्ठ अधिकारी हूँ, एकदम मेरे जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं है, सामने वाला आदमी वही बोल दे तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर ही अंदर हम बड़ा मजा लेते हैं हमारे जैसे। कृष्ण है तो हमारे लिए है, हम है तो दैट इज वाई, बिकॉज हम लोग वो तारीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये किसका रिफ्लेक्शन है? वही मजा वाला जेनेटिक्स। नहीं, कभी मजा इधर ले रहे हैं, कभी मजा बाहर ले रहे हैं। वो मजा बंद हो गया तो मंदिर के अंदर मजा ले, मजा खाए कैसे कैसे ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार से मजा ले। प्रसाद का चटखारा, नहीं, ये मजा लेने का तरीका। जब तक ये रहे कि हाँ ये भगवान कृष्ण का भोग लगाया हुआ प्रसाद है, तब तक वो मजा में नहीं है, ट्रांसीडेंटल में। लेकिन जिस समय में ये मजा आया, जो कहावत है, बहुत सुंदर एक कहानी है कि एक मंदिर से बारंबार जो खीर होता था, भगवान को राजभोग में जो खीर चढ़ाया जाता, दैट खीर यूज्ड टू वैनिश, गायब हो,
जो गायब हो जाता है तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो बड़े परेशान है। राजभोग में खीर लगता है, डेली किसी को खीर नहीं मिलता। एक छुप छुप के वो एक भक्त जो राजभोग लगा रहे थे, उसके असिस्टेंट ही वापस निकालते समय में खीर निकाल लेते हैं। तो पकड़ते हैं, "अरे, तू खीर क्यों निकाल रहा है?" तो भोग है, भगवान का प्रसाद है, खीर निकाल लिए तो क्या हुआ, इसमें थोड़ी कोई चोरी होता है। तो वो करेला क्यों नहीं निकालता, हर दिन खीर ही क्यों निकालता है, करेला क्यों रह जाता है? नहीं ये, हाँ, यहाँ पे आ गया मजा। सब अगर हमको भगवान का ट्रांसेंडेंटल मजा ही लेना है तो करेला भी उतना ही मजा आना चाहिए जितना मजा खीर में है ना। तो उसी मुहूर्त हमको ये जानना चाहिए कि मंदिर में भी हम लोग कई बार भक्त बनकर या फिर बाहर भी गृहस्थ में भी भक्त बनकर केवल हिडन रूप से वही मजा ही ले, थोड़ा ये कई गृहस्थ भक्तों में ये आदत होता है। सुनते हो भगवान आज नाश्ते में क्या बना रही है, भक्त है ये क्या है? नाश्ते में क्या बना रहा है? नाश्ता किसके लिए बन रहा है? हाँ, और लेकिन ये डिस्कशन क्या है? भगवान, और उसको घुमा फिरा के पूछेंगे, कैसे घुमा फिरा के पूछेंगे, देखो भगवान आज भगवान को नाश्ते में क्या भोग लगा रहे हो, मतलब हमारा क्या भोग लगने वाला। एटीट्यूड तो ये होना चाहिए कि जो भी भगवान को भोग लगे वो हमारे लिए अमृत है, वो हमको खाना है। नहीं, लेकिन हम मजे के चक्कर में क्या कर रहे हैं, हाँ आज पोहा लग रहा है क्या, हाँ, पोहा के ऊपर थोड़ा आज वो सेव भी डालना, मजा आएगा, भगवान को मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अपने आप बेल रिंग करते हुए भी सपने वो उसी पोहे के हाथ में, बेचारे भगवान खाएंगे क्या, समझ में आ रहा है? So this is nothing but another sense of that मजा ढूंढना, ये है थर्ड क्लास। सेकंड क्लास लेवल का डिवोटी क्या है, सेकंड क्लास लेवल का डिवोटी है, चलो प्रभुपाद ने मेंशन फोर पॉइंट्स, he understand who is God and he understands that who is a devotee, who is ignorant and who is unwise, right? वरिष्ठ सन्यासी है, वो बताते हैं, आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो, किसी इंसान को बुक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका पहले से जांच पड़ताल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये बुक लेगा नहीं लेगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर टेक्निक सिखाया। क्या टेक्निक, वो बोले कि जब भी किसी को बुक देने का हो ना, लुक भगवान कृष्ण, लॉर्ड विष्णु, सी हाउ इज सिटिंग, नहीं तो आदमी अगर एक बार गौर से देखने आए और आंखों में आप उसके देखे कि दोबारा देखने का कोशिश कर रहा है कि नहीं, वो एकदम पोटेंट आदमी है, उसको बुक जाएगा ही जाएगा, पकड़ा दो, नहीं। लेकिन वो फोटो दिखाते ही कभी नहीं लेगा, क्यों, एनवायस है। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था, इज एनवायस, हाँ, वो एकदम मैंने, एनवायस की हिंदी क्या हो, ईर्ष्यालु, एकदम ईर्ष्यालु, कृष्ण से ईर्ष्यालु। तो कृष्ण से ईर्ष्यालु है, उसको फोटो देख के उसके नजरों में पता चल जाए, ठीक? और दूसरा है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए भी देखेंगे इग्नोरेंट। इग्नोरेंट कैसा है, "ब्रो जी भगवत गीता सर, भगवत गीता, भगवत है मेरे पास, है भगवत गीता है।" तो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ पूरा आदमी, अच्छा भगवत गीता है, ये लो प्रसाद लो, ये तो नहीं है ना, बोल के देना है, थोड़ा कम से कम मन में एक कचोट तो आए कि एक्सपर्ट है, और हंस के देना है, हंस के देना है, मुस्कुरा के देना है, उसको ऐसा तो लगे कि इसको सब पता है, नहीं? वो बॉलीवुड वाले डायलॉग, पब्लिक है ये सब जाने, हम पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे कि हमारे पास भगवत गीता है, तो भगवत गीता है तो प्रसाद तो नहीं होगा, तो ये जरूर लीजिए, ये दूसरा टेक्निक, इग्नोरेंट तो नहीं। अब आगे क्या है, भक्त के, भक्त के लिए कुछ ज्यादा दादागिरी नहीं करते, भक्त के सामने झुकते हैं। अब रोजी कैसे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए पर्सनल अटैचमेंट, दोस्ती। भक्त रास्ते में दिख रहा है,
मंदिर के बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, भक्त दिख गया, उसको बुक ले लो, आप करते भी नहीं, करते हो क्या? भक्त तो नहीं करते, पहचान वाला भक्त तो नहीं करना, उसको देना है पर्सनल अटैचमेंट। कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, तबीयत ठीक है क्या, आज प्रसाद लिए क्या? ठीक। वो अपने आप आकर आपका टेबल देखेगा, तो क्या है, कुछ है क्या, क्या क्या स्पेशल, अपने आप देख। और फाइनली क्या आता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही फाइनली क्या आता है, भगवान को जानना। अगर पिछले लेक्चर में आप याद करेंगे, शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये पॉइंट कि एक बुक डिवोटी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला भी, एक प्रीचिंग करने वाला भी योद्धा से कम नहीं, योद्धा से कम नहीं, युद्ध पे जा रहा है, अर्जुन से कम नहीं। कैसे? इस जगत में श्रील प्रभुपाद की किताबों को लेकर उतरना युद्ध से कोई कम नहीं है, जहाँ लेने वाले कम और दुत्कारने वाले अधिक है। उस युद्ध में उतरने के समय में अब अगर यदि कृष्ण को अपना सारथी बनाकर नहीं लेके जाते, बहुत डर लगेगा, बहुत संकोच होगा, और उस समय में ना तो प्रीचिंग होगी ना डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक बार ऐसे भी कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव नंबर ऑफ डिवोटीज, क्लोज द टेंपल, गो फॉर प्रीचिंग। नहीं, अगर आपके पास मंदिर मैनेज करने के लिए भक्त नहीं है, तो मंदिर को बंद रखो और जाओ प्रचार करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है पूरे डिवोशनल सर्विस का। करेंगे तो हर एक अंग डिवोशनल सर्विस का है। कैसे? एक क्विक ट्रायल है। जब आप प्रीचिंग करने के लिए जाएंगे, बाहर नहीं खा सकते, भूख लगेगा जोर से, उस समय से कहीं भी पोटली में बांधा हुआ सूखा प्रसाद मिल जाए तो कैसे अंदर से भक्ति निकलती है, आंसू आ जाते हैं। तो बाद आपके पास से आज प्रसाद मिल रहा है, बहुत भूख लग रहा है, प्रसाद का इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए। जब किसी आदमी ने सामने से दुत्कार दिया, नहीं, तो उस समय में आपको दुख लगता है, दुख लगता है यार सामने से, यार ऐसे कैसे बोलना है। उसी समय में कोई भक्त सामने से दिखाई दे गया और आपको गले लगा लिया, भक्त के इम्पोर्टेंस का पता चला कि नहीं। तो ये जो डिवोशनल प्रैक्टिस है, जो सेवा है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद का पूरा संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन है। ही इज एक्सप्लेनिंग दैट बाय डूइंग अ डिवोशनल सर्विस यू आर accompanying everything of seva into it, but by doing jnana, vairagya or yoga, all of them cannot. That is what is the greatness of समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद इसमें मेंशन करते हैं, जानना बहुत जरूरी है। वो लाइन ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि हाँ क्या, such a neophyte devotees make a show of hearing from professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. इस लाइन को दोबारा एक बार, such a neophyte devotee has very little taste of hearing from authorities. Such a neophyte devotee makes a show of hearing from professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. So one should be very careful about faulty process. The whole message of Godhead is inculcated in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are undoubtedly transcendental subjects. But even though they are so, the transcendental matters are not to be received from professional man who spoils them as a serpent spoils milk simply by the touch of his tongue. कितना जरूरी है ये समझना। हम लोग इसका देखते हैं असर होता क्या है। आप जब कीर्तन ढूंढने के लिए यूट्यूब में जाते हैं, आप जब कीर्तन ढूंढने के लिए यूट्यूब में जाते हैं तो आप देखेंगे जबरदस्त कीर्तन मिलते हैं टॉप की बॉलीवुड सिंगर्स। हाँ, ऐसा सुंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गजल सिंगर भी महामंत्र गा रहे हैं, बॉलीवुड सिंगर भी हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। इमीडिएट अट्रैक्शन क्या होता है, हरे कृष्ण।
तो कीर्तन थोड़ा रहने दे, उसमें ठीक नहीं है थोड़ा, इनका सुने, ये टॉप के बॉलीवुड सिंगर है। उससे होगा क्या कि सबसे पहले हमने अभक्तों की वाणी से महामंत्र सुनने का अभ्यास कर लिया, वाणी से, अभक्तों की वाणी से सुनने का अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस हो गया, अभक्तों का आवाज जा रहा है, महामंत्र के रूप में ही जा रहा है। ठीक उसी तरह से अभक्तों की फिलोसफी भी जानना इजी हो गया। यू हैव मेड इट इजी फॉर द नॉन डिवोटीज टू रीच योर हार्ट, राइट? यस, दिस माइट साउंड टू बी लिटिल फैनेटिक। अरे सिर्फ देखिए, दवा जब आप ले रहे हैं तो दवा तो प्रोसेस में लेना पड़ेगा। दवा को आप अपने मन मुताबिक तो मरोड़ नहीं सकते। आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक ने ये बोला है तो भाई ये दवा के बाद दूध नहीं पीना, आप अपने मन मुताबिक बोले, जैसे ठीक होने लगता है, नहीं चलता है क्या है, तो हाई लेवल के डॉक्टर है ना, उसने बोल दिया दूध के बाद आप सालों साल लेते रहिए दवा, उसके साथ दूध पीते रहिए, आप कुछ भी नहीं होगा। अब फाइनली फिर आप क्या करेंगे, आप पूछेंगे और डॉक्टर को, डॉक्टर का दवा काम नहीं करता, जो उसने बोला था प्रेस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग काम नहीं किया। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? बाय ऑरल रिसेप्शन, नॉट फ्रॉम ए प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन भी आजकल बहुत सारे हैं, भागवत का फिलोसफी बांटने के लिए भी प्रोफेशनल पर्सन बहुत सारे हैं। बहुत कई बार अचानक से आपको ये भी लग सकता है कि अरे प्रोफेशनल पर्सन कौन है? भागवत सुनाने के लिए सन्यासी भी बैठते हैं। ठीक? उसी तरह से भागवत सुनाने के लिए कोई कोई देखेंगे म्यूजिक वाद्य सितार वितार सब लेके बैठ जाते हैं। ठीक? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, डिंग 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 डिंग, क्या जरूरत है? अगर किसी को भगवान कृष्ण के अपीयरेंस में अट्रैक्शन आएगा तो बोलने से अट्रैक्शन आ जाएगा, आपको शुद्धता से अट्रैक्शन आ जाएगा। जिसकी शुद्धता नहीं है वो सितार बजा के शुद्धता दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे हैं, इसीलिए केयरफुल रहना, क्योंकि जैसे ही हम उनसे सुनना शुरू करेंगे, जैसे ही हम उनसे सुनना शुरू करेंगे, वैसे ही हम अपने कान के द्वारों को खोल दे रहे हैं भक्ति नहीं आडंबर की तरफ। और आडंबर की तरफ खोले तो माया आ रही है अंदर, और याद रखिए माया इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। माया इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। वो वहां वहां किक मारेगी जहां जहां आपको पता भी नहीं है। हाँ? आप सोचोगे ये प्रोटेक्ट कर लूं, ये प्रोटेक्ट कर लूं, ये तैयार कर लूं, घुसने तो दिया ना। जैसे ही घुसने दिया, अंदर पहुंचकर गोलमाल शुरू। ये फास्ट फूड की तरह, जब तक अंदर नहीं गया तब तक बहुत अच्छा लगता है। नूडल्स, स्किजवान नूडल्स, जैसे ही अंदर गया अपना रंग दिखाना शुरू। वैसे मजाक में बोलते हैं इंडस्ट्री में कि फास्ट फूड जाते हुए भी जलता है, अंदर भी जलता है, निकलते हुए भी जलता है, हर तरफ खाली आग ही लगे। ठीक उसी तरह से हमने माया को किसी भी रूप में अंदर आने दिया, तो अपना काम तो करे। तो जी ऐसा रोकना तो बड़ा मुश्किल है, तो भौतिक जगत में घूम रहे हैं। इसीलिए तो बोला कि पहले अपने सुबह का पुशअप और स्क्वाट्स लगा लो। ठीक है, सुबह का पुशअप और स्क्वाट्स क्या? मंगला आरती, दर्शन आरती, भागवत क्लास, डिवोशनल मसल्स बना लिए अच्छे से। उसके बाद जाइए, जब उसके बाद जाएंगे तो आपका बॉडी ऑलरेडी तैयार है खेलने के लिए, वरना बड़ा मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस आए उनकी फिलोसफी लेके। तो यही है आज के इस श्लोक का बात करें। हरे कृष्ण। आपको कोई सवाल प्रश्न है? समझ गए, समझ गए। आप पूछ रहे हैं वैष्णव संप्रदायों में 4 संप्रदाय हैं, और रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, अलग अलग करके कुमार संप्रदाय, ऐसे करके 4 संप्रदाय हैं। अब क्या हम उन संप्रदाय को सुने या नहीं सुने?
इसका एक छोटा सा एपिसोड बताकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। एक बार की बात है, मंदिर था दूसरे जगह, वुडलैंड्स करके जगह है, वहाँ का मंदिर था। हिज होलीनेस भक्ति का स्वामी महाराज आए थे और उनका किताब है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के ऊपर, उनका बहुत सुंदर किताब। तो बदमाशी के रूप में मेरा बड़ा शौक है किताब खरीदने का। पढ़ूंगा कभी मालूम नहीं, किताब खरीदने का मेरा बड़ा मजा आता है, और नए नए किताब हो तो और तो जैसे ही वो वॉल्यूम रिलीज हुआ, मैं महाराज के हाथ से लिया और फिर मैं एकदम पर्सनली पहुंचा महाराज सिग्नेचर लेने। सिग्नेचर लेते हुए महाराज को मैंने किताब दिया, महाराज पर्सनल सिग्नेचर। सिग्नेचर करने गए, फिर रुक गए, रुक के बोले यू हैव रेड ऑल श्रील प्रभुपाद बुक्स। किताब बंद कर, नो नीड ऑफ रीडिंग दिस। अपना किताब, नो नीड ऑफ रीडिंग दिस। गुस्सा हो गया, क्या ऐसे only after reading the Prabhupada's books, when you have finished them reading properly, then there is a chance of understanding or realizing these books. Otherwise, no need of reading. As long as you have not read Srila Prabhupada properly, there is no use. तो तात्पर्य यह है कि श्रील प्रभुपाद ने इतना दे दिया है और सेफली दे दिया है, शास्त्र और किताबों के रूप में, लेक्चर्स के रूप में, कथन के रूप में, और उनके भक्त भी इतना दे रहे हैं। हम उनको क्या पूरी तरह से सुन लिए हैं या सीख लिए हैं सिस्टमैटिक रूप में? अगर नहीं सुने हैं तो सेफ्टी इसी में है कि उन्हीं को ही सुने और सीमित रखें, क्योंकि इवन संप्रदाय में भी मानसिकता में अंतर पाया जाता है। अलग अलग संप्रदायों में भी मानसिकता में अंतर पाया जाता है। एक एग्जाम्पल आपको दें, हमारा ब्रह्म गौड़ीय मंत्र संप्रदाय है। अब देखिए, बाकी तीनों संप्रदाय में लगभग लगभग सब विलुप्त हो गए, बहुत छोटे छोटे जगह पे सीमित। एक अकेला इस्कॉन ऐसा है जो संस्थान के रूप में और प्रगति कर रहा है, और जो मेन आचार्य हैं वो अपने धाम में चले जाने के बाद भी ग्रोथ कर रहा है। कोई और ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। और इस ग्रोथ के प्रोसेस में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जिनको हम माने नहीं माने, लेकिन वो करना पड़ता है ताकि संस्थान का ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। समझ पा रहे? अब इन सबको मैनेज करते हुए सब भक्ति और भक्तिमय बुद्धि को मैनेज करने का एक ही रास्ता है कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित किताबों को अच्छी तरह से अध्ययन करें और उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तब सेफ्टी का गारंटी होने का चांस है। क्यों? क्योंकि दूसरे संप्रदाय तो लगभग विलुप्त हो गए। हम उनके जो आध्यात्मिक फिलोसफी है उसमें कहाँ त्रुटि आ रही है, कहाँ विक्षेप आ रहा है, उसका तो हमें पता नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने कभी प्रीचिंग पे ज्यादा जोर नहीं दिया। प्रीचिंग पे नहीं जोर दिया तो सीमाएं बांध ली, लेकिन प्रभुपाद ने वो सीमाएं तोड़ दी। लेकिन वो फिलोसफी कहाँ है जो हम प्रीचिंग पे ज्यादा जोर दे, सीमाओं को तोड़कर प्रीचिंग करें? वो फिलोसफी केवल श्रील प्रभुपाद के ही शास्त्र में। इसी वजह से हम लोग हैं कहाँ का, थर्ड क्लास डिवोटी लेवल। अभी उन्होंने इस श्लोक में क्या होता है कि थर्ड क्लास डिवोटी वाले को हमेशा सेकंड क्लास को पकड़े रहना चाहिए और ऑरल रिसेप्शन करते रहना चाहिए। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना क्यों चाहिए? कहीं से भी माया घुस सकती है, इवन संप्रदाय के टैग से भी घुस सकती है। क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम कि वो संप्रदाय का वरिष्ठ भक्त है ही या नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर कहीं सुनना भी है तो सबसे पहले अपने संप्रदाय के किसी सीनियर भक्त से पूछ लीजिए कि भाई उधर जाऊं क्या। लेकिन ये जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? श्रील प्रभुपाद भी बारंबार कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ अपने किताबों में दे दिया, और हमें बारंबार उनकी किताबों का अध्ययन नहीं करते रहना है, ये सेफ जोन में रखना है। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल करना है कि श्रील प्रभुपाद ने से उनके ही अमेरिकन डिसाइपल्स ने जब वो पहली बार बंगाल वापस आए तो उनसे पूछा कि गौड़िया मठ है,
वहां पे जाके हम थोड़ा सा सुन के आए तो शिल प्रभुपाद थोड़े से क्रुद्ध हो गए। I have given everything in my book. You don't need that. वो जवाब हमारे लिए, समझ पा रहे हैं? उन्होंने अपनी किताबों में इतना दे दिया है कि हम भागवतम भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पा रहे, भगवत गीता भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पा रहे, तो दूसरे की जरूरत क्या है? दैट इज वाई सेफ्टी इज इन स्टिकिंग टू। अब इसका एक जल्दी से मेडिकल तात्पर्य में, ये शायद आपको मुश्किल होगा समझना है क्योंकि मेडिकल फील्ड में नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल में बैठते हैं तो हमको महसूस होता है। कैसे? समझो आप किसी डॉक्टर को पहचानते नहीं, आप किसी हॉस्पिटल में गए, और वो एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल में डॉक्टर का ट्रेनिंग ही क्या रहता है कि भाई कम से कम 15,000 का खर्चा, वरना वो ठीक नहीं हो। तो थोड़ा MRI, थोड़ा CT स्कैन, थोड़ा उसके बाद देख सब चेक करने के बाद बोले कुछ नहीं, आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं, पहले ही बोल देता था तेरे 15,000 बता। अभी तात्पर्य ये है उसी जगह में आप किसी पहचान वाले डॉक्टर के पास जाओ और बोलो ओ जी तकलीफ है, क्या करवाना है बोलो, तो उसमें क्या होता है कि इतने सारे चीजों से आप आराम से सुरक्षित बच के उसी हॉस्पिटल में घुसेंगे, वहीं से निकल आएंगे, दवा फ्री में लेके निकल आएंगे। ठीक? लेकिन समझ पा रहे हैं? एक जो अव्यक्त अब मैंने जानता नहीं था, वो हॉस्पिटल में घुसा तो उसकी परिस्थिति क्या हुई, इधर घुमा उधर घुमा, परेशान हो गया, क्या ट्रीटमेंट करवाए। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है, अरे ये डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, वो डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, अरे बाप रे अब करे तो क्या, अटर कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन से बचने का रास्ता है तो प्रोपर फॉलो, वो हमारे फिक्स्ड फैमिली डॉक्टर, इसीलिए फैमिली डॉक्टर के साथ बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप। वो देता ज्यादा कुछ नहीं है, पैरासिटामोल नहीं देगा, और चश्मा इधर लगा रहता है, हम बूढ़े बूढ़े होते हैं, क्या हुआ सर बहुत दुख रहा है, बहुत बीमार है, तकलीफ है, हेलो पैरासिटामोल। आपको बड़ा गुस्सा आएगा यार, उनको इतना तकलीफ है दे रहा है पैरासिटामोल, खाने के बाद ठीक हो जाने के बाद पूछते हैं भाई आपने कुछ दिया कि नहीं? आपको वायरल फीवर था, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, पैरासिटामोल क्यों, उसका एक्सपीरियंस है, तो उस पर विश्वास करने में फायदा है। समझ में आ रहा है? इसलिए तो इसी वजह से जो डॉक्टर हमको मिला है वो डॉक्टर को पूर्ण विश्वास करें, और पूर्ण विश्वास करके उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। दूसरे डॉक्टर में कई बार हम कंफ्यूजन में फंसते हैं, डॉक्टर तो वो भी है, वो संप्रदाय वाला भी डॉक्टर है, लेकिन दूसरे मानसिकता में है। हो सकता है हम कंफ्यूजन में पड़े, और समय कम है, कंफ्यूजन का समय नहीं, बड़ा डेंजरस। ठीक है? और फिर श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, बहुत ही लाजवाब सवाल, एकदम गोल्डन। ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम जितना बाहर होता है उतना भक्तों के अंदर भी होता है। हाँ? अति परिचयात अवज्ञात, हमने फेमिलियरिटी गिव्स कंटेंट, जितना ज्यादा दोस्ती बढ़ता है उतना ज्यादा तकलीफें भी बढ़ती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका समाधान कैसे, समझ पा रहे हैं? सवाल को समझ पाए ना? कि जैसे हम दोस्ती में संबंध बढ़ाते हैं, संबंध बढ़ाते एक दूसरे को अच्छा जानते हैं, फिर एक दूसरे की कमजोरियां भी जानते हैं, तो कमजोरियां जानकर हम एक दूसरे के अंदर त्रुटियां निकालना शुरू। तो इसका आंसर इस श्लोक में दिया गया है। देखिए इस श्लोक में लिखा है, सेकंड क्लास डिवोटी नोस फोर प्रिंसिपल्स, second class devotee can see four principles, that is personality of Godhead, पहला point is devotee ignorant in the envers,
इसका अर्थ क्या है? दोस्ती पर्सनल बेसिस पे बनाने के साथ साथ कृष्ण को बीच में रखना भी बहुत जरूरी है। बारंबार कृष्ण को जब हम बीच में रखेंगे, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, लेकिन ये भी कृष्ण का भक्त पहले है और फिर उसके बाद मेरा। तो इससे होता क्या है कि हम वैष्णव प्रिंसिपल्स को हमेशा सबसे पहले रखें कि ये भी वैष्णव है, ये मित्र के अलावा सबसे वरिष्ठ अच्छा वैष्णव। और वैष्णव में के लिए भगवत गीता में क्या कहा गया है कि हमको वैष्णव के अंदर भी त्रुटियां दिख सकती हैं, बट बी गारंटेड कि मैं वो चीजें ठीक कर दूंगा। तो अगर मित्र है, प्रेम है, प्रेम है, तो आपको तो उनका गलतियां ठीक करना आपका भी अधिकार है। किस तरह से ठीक करें गलतियां? एक बार सामने उजागर कर, भाई देख गलतियां हैं, मुझे लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है? आपके परिवार में कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं? बीमारी को ठीक करते हो? खुद ठीक करते हो? डॉक्टर के पास लेके, और आप डॉक्टर के पास ले जाकर आप उसका इलाज करवा दो। हमारे डॉक्टर श्रील प्रभुपाद और जगन, सबसे बड़ी गलती भक्तों के रिलेशनशिप में यूं हो जाता है कि हम अपने मित्र के लिए कभी प्रार्थना करते ही नहीं। ये सबसे बड़ी त्रुटि है। भगवान दूसरे की प्रार्थना तुम्हारे प्रार्थना से ज्यादा सुनती है। हम बोलते तो हैं प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी, लेकिन हम कभी करते नहीं। मित्र का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि ये मेरा मित्र अगर त्रुटि युक्त है तो मैं उस त्रुटि के लिए सबसे पहले श्री प्रभुपाद से दिल से प्रार्थना करूं, जगन्नाथ जी से दिल से प्रार्थना करूं, वो सुनेंगे 100%। लेकिन हमने और आपने भी थोड़ा तो सेवा किया है। जब सेवा किया है और बच्चा दूसरे बच्चे के लिए मांग रहा है, वो द्रवित होकर रोकर सुनेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम डायरेक्ट लेवल पे अपने आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से त्रुटियों को देखते हुए लड़ाई झगड़ा, इसका समाधान ये है कि बोले जरूर। मित्र का काम ही है एक कभी न कभी बोलना, प्रेम से बोलने, उजागर करें, नहीं? मजाक में भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने के बाद देखते हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो मन से हृदय से उस दोस्त के लिए, तो मित्र है ना, आखिर तो मित्र है, मित्र के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि वो एग्जाम्पल, कोई बीमार है, क्योंकि वो जो मित्र है उसमें कोई त्रुटि है, मतलब वो बीमार है, उस मानसिकता से बीमार है, और उस मानसिकता को हम ठीक नहीं कर सकते। उसका ठीक करने का रास्ता क्या है? अपने वरिष्ठ भक्त के पास जाकर कंप्लेन नहीं, इस भक्त के लिए प्रार्थना करें। इस भक्त के लिए कैसे प्रार्थना करें? अक्सर हम वरिष्ठ भक्त के सामने जाके, अपने गुरु के सामने जाके, अपने काउंसलर के सामने जाके कैसे अप्रोच करते? प्रभु जी मालूम है, है ना, सुधर नहीं रहा, बहुत मुश्किल। मैंने वरिष्ठ भक्त के सामने भी हम जाके अपना पूरा निचोड़ के एकदम कुंठा निकाल देते हैं उसके सामने। लेकिन वरिष्ठ भक्त भी तो कृपा देने वाला, तो वरिष्ठ भक्त के सामने जाकर उसकी तारीफ करके, थोड़ी देर के लिए उसकी तारीफ करके, वो दे रहे हैं कुछ प्रसाद दे रहे हैं, आप सोचिए उस समय में उस भक्त को आप याद कर लो, प्रभु जी हमारा राजमुनि प्रभु है, उसको थोड़ा सेवा दे दो, उसको भी थोड़ा लड्डू दे दो, राजमुनि प्रभु था प्रसाद में। इमीडिएटली वो आदमी कितना भी कुंठा में हो, मुझे ना प्रसाद दे। तो ये वरिष्ठ भक्त से भी प्रार्थना करें, प्रभुपाद से भी प्रार्थना करें, और जगन्नाथ जी से भी प्रार्थना करें। ये दोस्ती की पहली मिसाल, हम वो भूल जाते हैं। इसीलिए जिस जिस प्लेटफॉर्म में हम अपनी मानसिकता को रखते हैं, उसी प्लेटफॉर्म में सुधार भी हम अपने पर्सनल लेवल पे ही रह जाते हैं। इसीलिए पर्सनल लेवल पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस लेवल में हम तो खुद त्रुटि युक्त हैं, हम उसको कैसे ठीक करें? इसीलिए विनम्र निवेदन पहला कदम, और उसके बाद प्रार्थना, उसमें से रिलेशनशिप बढ़ा। और मैजिक इसका ऐसा होता है कि मैं भी कनिष्ठ अधिकारी हूँ,
मैजिक इसका ये होता है कि जैसे ही आप मन से हृदय से किसी के लिए प्रार्थना करके भिक्षा मांगेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। धीरे धीरे वो आदमी उस स्थिति से बाहर आ ही जाएगा, और कई बार प्रेम से बाहर आएगा, आपके प्रति प्रेम लेकर बाहर। लेकिन हमें तो करना है, क्या करना है, अन्य अभिलाषा तक सुनना है। आपने प्रार्थना कर दिया, ये वेट नहीं करा करना है, ये प्रार्थना किया इसलिए काम किया क्या, काम किया क्या, हम नहीं कर रहे हैं, सुनते नहीं। प्रार्थना करना है, 108 डायल करना है, एम्बुलेंस वक्त कहाँ से भेजेंगे वो उनकी जिम्मेदारी। हर दिन उस मित्र को प्रार्थना में रखना, ये दोस्ती। और प्रार्थना नहीं करना, ये दुश्मनी। भक्त के पास और है क्या चीज प्रार्थना के सिवाय? कृपा ही है ना हमारे पास, तो कृपा को तो चैनलाइज करना है। हम कृपा खुद देने लग जाते हैं, वहां पे समस्या। हाँ बोलो। हाँ, सेवा कर रहे हो, मतलब सेवा करने का इच्छा है। कभी कभी किसी तरह तकलीफ होने लगता है कि ज्यादा मैं बाद में रियलाइज उस समय इस तरह तकलीफ हो रहा था कि सोचते हैं कि अगर ये इस तरह से हो जाती तो शायद हमें तकलीफ ना होती। और क्योंकि वो तकलीफ हो गई, अगर वो बाई चांस बढ़ गई तो भगवान की कृपा से ठीक थी, लेकिन उनके इसको किसी भी तरह से, किसी की लापरवाही से या किसी की गलती से काम हम अगले दिन हम सेवा ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारी हेल्थ ही खराब है। तो फिर अंदर में होता हुआ निकल जाता है। तो फिर कैसे करें? इसीलिए भक्ति के सामने सामने महाराज कहते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल मालूम है? बताओ। ये नहीं नहीं, बताओ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। एक, इलिसिट सेक्स, दूसरा गैम्बलिंग, करना नहीं, इंटॉक्सिकेशन, मीट, पांचवा भी है हेल्थ केयर, अपने हेल्थ का ध्यान। महाराज बारंबार इस चीज को उजागर करते हैं कि भक्तों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप इसको एकदम बुलेट शॉट की तरह लगेगा। अगर इस्कॉन में वरिष्ठ भक्तों में समस्या कुछ आ रही है, तो उसके पीछे एक मेजर कारण 40 के बाद का हेल्थ प्रॉब्लम ही है। अगर हम इस चीज को अभी समय रहते अच्छी तरह से इसका समाधान नहीं करेंगे, तो ये चीज बहुत नासुर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसीडेंटल चीजों के बारे में प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ट्रांसीडेंटल एक्टिविटी इसी शरीर से करना है। और अगर शरीर में कोई विक्षिप्तता आ जाती है, तो मानसिकता ही नहीं रहेगी कि आप ट्रांसीडेंटल एक्टिविटी नहीं कर पाए, क्योंकि हम उस लेवल पे है ही नहीं, शरीर के बाहर के लेवल पे है नहीं। हम मीराबाई नहीं है, जहर पी लिया ठीक हो गए। You're not in that level. So first of all, accept. पहले वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हम उस लेवल में नहीं। इसलिए महाराज का कहना एक दिन बहुत ही सुंदर ये है, फार्म प्रोजेक्ट है गोकुल धाम क्या में, तो मैं पर्सनली महाराज के साथ था, वहाँ मैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग करवा। तो मैं ठहरा कार्मी आदमी, आते हुए महाराज को बिजनेस ट्रिक्स थे। इतना मूर्ख आदमी, बिजनेस ट्रिक्स महाराज, महाराज ऐसा करते हैं, बढ़िया मस्त हेल्थ स्पा बनाते हैं, जबरदस्त अट्रैक्शन आएगा, पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड विल कम, दे विल रिलैक्स, दे विल गेट ट्रीटमेंट, विल अरेंज। महाराज वेरी पीसफुली गिव एन आंसर। आप जानते हो कैसे वो पीसफुली आंसर देते हैं, घूम के कार के आगे बैठे थे, घूम के बोले, so did my purpose of teaching them exercise is not business. My purpose of teaching them exercise that is that they don't become dependent at their senior age on others.
दैट इज द बेसिक है। दूसरे के ऊपर निर्भर न हो, क्योंकि आप समझिए ब्रह्मचारी जीवन लेते हैं, आप अकेले हैं। जितना आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाओगे उतना आपकी परिपक्वता कमजोर हो जाएगी, वीक, विल गेट वीक, right? So that is why to take care of your own physique is a primary importance for the person who is sustaining alone. It is very important because the moment your health breaks, you get dependent, and then you start cursing your present position. Why am I alone? If I am with somebody else, then I probably there would have been people to take care of me. Like that, the feeling immediately will come. This can only be handled if you have taken care properly of your health. This is primary requirement. इसीलिए महाराज ने कहा कि ये 5वां रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। आप अपने शरीर का अपने अकेले ध्यान नहीं रख सकते हो तो तब जरूरत पड़ेगी दूसरे आदमी, नहीं? अब जब दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी तो पूरा फिलोसफी इधर उधर टापाटोल होने लग जाएगी, मुश्किलें शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाई देयर इज नथिंग रॉन्ग in taking care of your personal health, because you know your personal health better than anybody else, right? लेकिन ये करते हुए भी विनम्रता पूर्वक, you have to be very polite with all these things. I'll give you an example. Many times when we treat patients, we are supposed to give injections, specifically elderly patients, जो बड़े बूढ़े हैं। कई बार आपने देखा होगा उनके हाथ बंधे रहते हैं, कई पेशेंट का आप देखो कि हाथ बंधे रहते हैं। तो जब मैं पहली बार मेडिकल फील्ड में आया तो मैं ये देखकर मुझे बड़ा दया आ जाता, मैं हाथ खोल देता था, वेनलॉक हॉस्पिटल में हाथ खोल देता था। तो नर्सेज कम, they were to shout, why open the arms? Madam, so much difficulty in opening their arms. Then they used to explain that, sir, if we leave their hands, they will first kick you, bite you, slap you, or otherwise they will scratch themselves. They have nails, they will scratch, start harming themselves. So it is better to tie them. Right? तो इसका मतलब ये है कि जब बीमार मानसिकता होती है तो कई बार आप दूसरे को क्षति पहुंचा जाते हो। शरीर बीमार रहता है, मन बीमार रहता है, तो इट्स वेरी वेरी नेचुरल that you might landing harming somebody either by words or on a very high stage physical, right? Being sensitive about it is devotion. जब शरीर तकलीफ में हो रहा होता है तो उस समय में you need to be a little bit selfish. Now this is not selfishness for yours, because if you are little selfish about your own body, you will be able to serve better, right? And if you break down, you will not be able to serve. मजेदार बात यह है, दुख की बात है, आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त से ये चीज पूछ रहा था कि प्रभु जी आज तक मुझे एक फोन कॉल नहीं आया, प्रभु जी आपका तबीयत कैसा है, विदाउट एनी पर्पस। क्यों? Because that is not my priority. We are busy in seva and we are judging everybody with their seva. इसका सेवा ये, उसका सेवा ये, उसका सेवा ये, उसका सेवा है, they have done or not, right? But they are also a body, they are also having a body. How many times that loving relationship, पूछा था, दोस्त वाला relationship पड़ता तो तब है जब consider two together, soul and the body together. कभी के बार फोन कर लिया करो बिना काम के भी और पूछ लिया करो उनकी तबीयत कैसा है, आपको आराम से। सामने वाला पूछे कोई सेवा नहीं, सेवा नहीं है, आपके लिए फोन किया, वो आदमी रो पड़ेगा। दिस इज रिलेशनशिप, नहीं? हम बिना काम के फोन ही नहीं करते, भक्त भी। जब आप दूसरे के शरीर को कीमत देते हो, लोग अपने शरीर की कीमत देते हैं, क्योंकि जिस किसी भी भक्त के साथ थोड़ा समझ लीजिए तबीयत खराब के समय में फ्रिक्शन हो गया, जब वो बीमार हो तब आपका फोन गया क्या, तो बीमार है, क्या तकलीफ हो रहा है, कुछ मालूम नहीं है क्या तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ। तो कल मैं जगन्नाथ जी से आज ही मैं अभी ये प्रार्थना, एक माला आपके लिए करूँ,
वो कैसे नहीं पिघलेगा, और जैसे बॉलीवुड भाषा में बोलते हैं तो बाप भी पिघले, पिघलने का तरीका मालूम नहीं। इसीलिए गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स बॉडी, कृष्णा विल अरेंज इम्पोर्टेंस फॉर यू, बट टेकिंग केयर ऑफ हिज बॉडी इज अ प्रायोरिटी इन डिवोशनल एक्टिविटीज, एटलीस्ट एट आवर लेवल। इसीलिए महाराज ने कहा कि दिस इज योर फिफ्थ रेग्युलेट, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब देखते होगे कि जब आप गंगा घाट जाते हो तो अखाड़े होते हैं, अखाड़ों में ब्रह्मचारी के सिवाय कोई अलाउड नहीं होता। अरे, वो लोग व्यायाम कैसे करते हैं देखा, बुलेट भी उठा लेते हैं, अच्छा खाते हैं, 20-20 रोटी खुराक होती है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मचारी माने रीढ़ की हड्डी सुदृढ़, दिमाग स्वस्थ, शरीर तगड़ा एकदम, नहीं। और हम अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं और कमर है टूटा हुआ, कंधा गर्दन दुख रहा है, तो ये किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लोग मजाक में ये बोलते हैं कि ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद के सेना का कमांडो है। कमांडो को आप देखो, कभी टूटा फूटा कमांडो, वो लड़ेगा कैसे, नहीं? इसीलिए कमांडो की हर प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कमांडो शुड ट्रेन आध्यात्मिकली, कमांडो शुड ट्रेन फिजिकली ऑल्सो एंड एट टॉप लेवल। ब्रह्मचारी को तो दूसरे प्रांत के लोगों की सेवा करने के लिए निकलना चाहिए, क्या रे, नहीं ध्यान रखेगा वो बेचारा निकलेगा कैसे, अच्छा नहीं खाएगा तो निकलेगा कैसे, अच्छा नहीं सोएगा तो निकलेगा कैसे। इसीलिए एक दूसरे का ध्यान, दोस्ती की कृपा, दोस्ती का अफेक्शन, इसमें भी होता है एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान। Love and affection is shown very strongly when you are weak, when you are in trouble. आपने कभी देखा है, एक छोटा सा एक्टिविटी बता, लेकिन इसमें एकदम आंसू आ जाए। आप सोए हुए, आप हॉल में सोए हुए और ठंड लगती है, बाजू वाला भक्त एक चादर दे जाता, नींद में, रात के 2, one blanket on top. Will you not feel affection for that person? Is it some interaction on the level of soul? No. That is friendship. Accepting that he is also having a body which can be in trouble. When you don't accept him like that, you do lose it. And we lose it. We as an instinct lose it. That is the primary importance. Bhaktivedanta Saraswati Thakur has told, we need to shed gallons and gallons of blood to make one devotee. What kind of devotee are we if we can't sustain one devotee? एक को बचा नहीं पा रहे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से so many devotees are coming, and what is our level if we can't save one devotee? That is why it is told, before becoming a devotee, become a human. In the race for becoming a devotee, we forget to become a human. That is the reason why it is very important to interact on the friendly basis. And to interact on the friendly basis is at least a basic phone call. रोजी प्रसाद क्या हुआ आज? भक्तों के साथ इंटरेक्शन जो होता है इस लेवल पे भी हो सकता है। दिस इज नॉट प्रजल्प, दिस इज जस्ट इंटरेक्टिंग आउट ऑफ अफेक्शन विदाउट पर्पस। गेटिंग द पॉइंट? जब दूसरे की मत दोगे वो आप, when you are, don't you feel love for me? That is affection, that is relationship. The moment anybody asks that,
प्रभु जी आज सोया नहीं लग रहा, आंखों में लाल आ थोड़ा सोलो एंड डू योर ध्यान दे देगा वो डिवोटी आपके लिए, he'll give you his life for you. This is relation. Taking care of the others body is the primary requirement. And if somebody feels sad about it, this fellow told, he has not understood you. That is then the next point which I told you. Pray for him. He has not understood. Don't hire your responsibility. Your prayers will help. But we often become transcendentalists before time. Sharir before time means what? We have not come out or raised ourselves above the body level. And we have become mentally transcendentalist. जिस दिन एक बीमारी या बुखार आता है, at that time we break down, and then we remember I have not taken care of my body. So that's already too late. Our philosophy is not to be fanatics. वो अखाड़े वाला fanatic body 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 कर रहा है, वो fanatic है. We don't need to copy them, but we need to learn the tricks from them. वो ट्रिक क्या है? हमको अपने शरीर के लिए समय देना जरूरी है. दिस इज अ प्रायोरिटी. अभी भक्तों से ये पता चला, कल ही की बात, कल ही उन्हीं भक्तों से बात करा थी, महाराज ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर आप चाहते हो कि मैं गोकुल धाम आऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं गोकुल धाम आऊं, तो आप व्यायाम करना तभी मैं आऊं. आप व्यायाम करना तभी मैं आऊं. ब्रह्मचर्य हो, आप व्यायाम करना डेली तभी मैं आऊं, वरना बंद आना. मतलब किस तरह से वेटेज दिया जाता है. So this is personal. When I go to him personally, of course, I don't know. I'm online. I try and help. Whenever I approach him, he will discuss my accounts first, my health first. Probably never a spiritual leader. I will ask him. That's personal leadership. उनको क्या पड़ी है? He has people from America, Canada, all big places. Why does he need to know? That is personal. Love. You give love, you get. Okay. Did I answer this question? Okay. That's right. Vinamra Karbadha Nivedan. You are in a position where you can give this love. Right? And that can turn this temple into a Vaikuntha. Just try and share. Sharing love can be simple. Sharing love can be just asking another friend or कर नहीं पाए कुछ भी, एक बार हाथ रख के बैठ के ठीक नहीं हो रहा. I remember one of the senior most devotees here whom we see every day. When I was sick and not getting sleep in my education time, he took out his moped नहीं बाइक, हीरो होंडा बाइक हुआ करता, वो मुझे पीछे बिठाए, 4 डॉक्टर के पास घुमाए. प्रभु जी इनके पास पूछ लेते हैं, प्रभु जी इनके पास. Who am I? A bare student. स्टूडेंट वो पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, कभी कभार सेवा करने के लिए आ जाता है, उसको क्या पड़ी है? वो बाइक में बिठा के घूम रहे, वन डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर. मन करेगा कभी इस इंसान को छोड़ के जाने के लिए? विल यू फील लाइक लिविंग दिस पर्सन? When I was sick, I had
I had brahmacharis coming to my room, shabby room, in my student life, very senior brahmachari, who started launch these temples. They used to come to my room and they used to set my table. Roji, kya hua? Very sick. Thoda prasad. I'll just get up from my bed and that is secret of sustenance. अब इसके बाद कोई भी मुझे कहीं भी किसी भी अट्रैक्शन से बुलाएं, मन तो इधर ही लगा रहेगा. ये ऐसा मंदिर है जहाँ के तुमने ऐसा बिहेव किया, तो कैसे छोड़ के, ठीक है. So when you feel it, the answer is you give it. When you give it, you get. Yes. Yes. श्रील प्रभुपाद का सेवा मिशन को बढ़ा. इस राजस्थान प्रभु जी बोलते हैं लेक्चर में कि जैसे आपका फैमिली ड्यूटी होता है, फिजिकल ड्यूटी होता है, प्रोफेशनल ड्यूटी होता है, there is also something called as a missionary. Somehow or other be a part of the mission, right? Because serving the mission is at least on our level repaying them. Somehow or other, whichever way we serve the mission, that is our service back. And Srila Prabhupada has promised, you be a part of my mission, I will take you from the back door. No, no, no. ऐसे इस ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी का एक कथन है. I was planning and asking him, प्रभु जी, what should I prepare for preaching for this, that? So he was taking prasadam and he jokingly asked me, would you like to go back to Golok? So I told very happily, yes, Prabhu ji, I want to go to Golok. So he told, what will you do in Golok? There is no need of preaching there. किसको प्रीच करें? गोलोक में जाकर किसको प्रीच करेंगे? कोई तो है नहीं, वो तो आपको प्रीच करेंगे. What will you preach in Golok? And the answer to that, right, is always Radhanath Swami Maharaj. Ask is always Bhakti Rasamrita Swami Maharaj, do you love cows? तो उन्होंने बोला, yes, somewhat. Do you know how to milk them? Maharaj told, no, I don't know how to milk them. Maharaj answer was, you don't know how to milk them, then how will you go to Golok? What will you do in Golok? There is no frontline devotees or backside devotees. It's a mission. Right? It's a mission, and when you go on a mission, the commando is also a fighter, and the cook for who is cooking for that commando is also a fighter. And when time comes, both are ready to die for the country. In the same way, we don't want you to die for something. We just want to give that mentality that if we are serving for the mission of Srila Prabhupada, every time keeping that feeling in the heart, Srila Prabhupada, it's for you. You will also develop a lot of forgiveness in your heart. Srila Prabhupada, it's for you. You have arranged. And in that mission, I'm just getting two kicks. Right? As Rajasthan Prabhu is in that, those we have to learn certain things from the Grihasthas. What certain things from the Grihasthas? The Grihasthas go out in the external material world. हर तरह के लोग मिलते हैं और ज्यादा गंदे ही नहीं. Hardcore materialists. They are all only bothered about getting their benefit out. When they stay in this environment for a good number of hours throughout the day, when they come to the temple, they relish being in the temple. Oh, devotees, getting the devotee, getting the prasad. They understand the importance of getting this. Right?
Whereas one who is constantly in the temple, since they do not see the kicks of the material world, that's what Prabhuji was telling about, right? Ati Parichayat Tavagya. We do not understand the mercy which we are getting. जो हमको कृपा मिलता है उसका हमको महत्व पता नहीं। भाग्यवान वो होते हैं जो उस कृपा का महत्व मानते हैं। हमारे शिवर सर उनसे पूछिएगा वो ज्वाइन करने से पहले क्या करते हैं, हमेशा वो बोलते हैं अरे मैं यहाँ नहीं आता तो ये कर रहा हूँ। आफ्टर 20 years also he remembers, 20 साल बाद भी वो ये याद करते हैं नहीं कि हमारा लाइफ उधर कैसा था और अभी कैसा है, कितना कृपा है। हम जिस मुहूर्त ये भूल जाते हैं अब अज्ञात करना शुरू करते हैं। So remembering the mercy is a fantastic thing. By remembering the mercy will always be a part of the mission. So forgetting the mercy will break out. But yes, we have to do the missionary activity. That is our part of our. And whatever method, missionary, a mission does not always have a commando only as a thing. A stenographer who is sitting in the office and preparing a chart of duty for the commando is also a part of the mission. And Srila Prabhupada as a mission head is kind and loving equally to each one. Okay?